In this video, we are going to have an overview about costing. There are how many topics? The first topic is the standard costing, that is introduction to standard costing. Second topic is introduction to marginal costing. Third is process costing. Fourth is contract costing. Fifth is cost control. And one more, there is a topic which is related to the theory part. Okay, so that theory part we will discuss at the end. First, we will discuss the most simplest topic, that is called as standard costing. Standard costing, how many formulas to by heart? There are total 6 formulas to by heart. The first formula is related to material variances, that is material cost variance. Second, material price variance. Third, material quantity or material usage variance. Don't get confused. Material quantity is nothing but material usage variance. So material cost variance, what is the formula? Total standard cost minus total actual cost. Then material price variance, what is the formula? Standard price minus actual price into actual quantity, not standard quantity, actual quantity. बहुत important है, actual quantity. And then material quantity or material usage variance, formula is standard quantity minus actual quantity into standard price. Very important. So if you by heart all these three formulas, by heart तो करना कुछ नहीं है, by heart में सिर्फ actual and standard you have to understand that your actual quantity price के हिसाब से हमने कितना quantity purchase किया, that is material price variance. और क्वांटिटी के हिसाब से whatever is the standard price, that is material quantity variance. So if you by heart these three formulas, then राखी सावंत पागल क्यों है? राखी सावंत पागल क्यों है? So price becomes rate and quantity becomes ours. Price become rate, quantity becomes ours. बराबर ना? So labor cost variance formula is total standard cost minus total actual cost. Labor rate variance, price will become rate. The formula will become what? SP minus AP na. So SR minus AR, AQ. So Q becomes what? AH. Similarly, LHV. R variance is also called as efficiency variance. Efficiency variance. How efficient our workers are. So we are calculating how efficiently the workers work. That is efficiency variance. Formula is standard hours minus actual hours into standard rate. Standard price becomes standard rate. Now the best part about the standard costing is, see, sums on standard costing are totally or very simple. Only that per unit वाला sum sometimes पर यूनिट दिया रहता है, पर आर नहीं दिया रहेगा. स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, पर आर नहीं दिया रहेगा, पर यूनिट दिया रहेगा. दैट पर यूनिट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पर आर. पर केजी नहीं दिया रहेगा, पर यूनिट दिया रहेगा. तो वो यूनिट वाला सम अगर याद रहेगा तो वो यूनिट वाला सम पे फोकस बराबर से करना. अलग अलग टाइप का मटेरियल वाला सम एक बार वो करके जाना, अलग अलग टाइप का लेबर वाला सम वो कर लेना, 2 सम ये कर लेना. एंड तीसरा, लेबर और मटेरियल दोनों एक साथ आता है. एक क्वेश्चन है जिसमें लेबर और वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस दोनों एक साथ पूछते हैं. 3 सम प्रिपेयर करके जाना एग्जाम के लिए बस. पहला लेबर और मटेरियल एक साथ वाला. दूसरा पर यूनिट पर केजी वाला सम. और तीसरा पर यूनिट पर आर वाला सम, कन्वर्जन ऑफ पर यूनिट इनटू पर आर. तो ये 3 सम प्रिपेयर करके जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा. अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. व्हिच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? नाउ आउट ऑफ दिस 6 फॉर्मूलाज दे कैन आस्क यू एनी शॉर्ट नोट ऑन एनी टाइप ऑफ वेरिएंस. मतलब वो लोग बोल देंगे कि यू शॉर्ट नोट ऑन लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. समझ में आ रहा है क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ऐसे करके शॉर्ट नोट कोई भी कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा. तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वेरिएंस, एनी टाइप ऑफ वेरिएंस, यू टेक मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, Why do we find out the variance?
We find out the variance to know that what is the actual difference between the standard and actual. कंपनी ने कितना स्टैंडर्ड दिया था, अरे इतने में बनाने का क्या, अरे हमने इतने में बनाया, हमने कम में बनाया तो फायदा किया. कंपनी ने 10,000 रुपए में बनाने दिया था, हमने 12,000 में बनाया, अरे नुकसान किया. समझ में आ रहा है क्या? तो वो वेरिएंस के ऊपर थोड़ा बहुत लिखो, देन राइट द फॉर्मूला, देन राइट वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लिख के आ जाओ, तो मेरे हिसाब से आधे पेज से ज्यादा का आंसर बन जाएगा. और अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थियोरी क्वेश्चन आया और अगर कुछ आ गया, दे कैन आस्क यू एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूजफुलनेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और उसका यूजफुलनेस, बस. बाकी थ्योरी क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर इसके अलावा नहीं आ सकता है. समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो, सम 3 टाइप के सम प्रिपेयर कर लो, अलग अलग टाइप का मटेरियल, अलग अलग टाइप का लेबर वाला एक पर यूनिट पर केजी पर यूनिट पर आर कन्वर्ट करने वाला एक, और लेबर और मटेरियल दोनों वाला मिक्सचर वाला एक सम आता है, वो 3 सम प्रिपेयर कर लो और ये टॉपिक खत्म करो. समझ में आ रहा है क्या? और थ्योरी में क्या पढ़ना है? थ्योरी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुलनेस क्या है, सब एक साथ ही आएगा. कुछ भी फेंको, वो है, इंपॉर्टेंस है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. हाँ, डिसीजन मेकिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द कॉस्ट. हाँ, कंट्रोलिंग कॉस्ट. समझ में आ रहा है? इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. हाँ, सब वही है. सब टॉपिक का एडवांटेज, कुछ भी टॉपिक का एडवांटेज पूछा ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोला, मार्जिनल बोला, प्रोसेस बोला, कुछ भी बोला, कुछ भी फेंको, क्योंकि किधर ना किधर से वो एडवांटेज किधर ना किधर से तो लग ही जाएगा. हाँ, किधर ना किधर चिपकने वाला ही है. तो कुछ भी फेंको लेकिन लिख के आओ. क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या, एंड दे कैन आस्क यू पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन. एंड लेबर कॉस्ट वैरिएंस, शॉर्ट नोट. तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस क्या है, पहले वेरिएंस क्या है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, लेबर वेरिएंस क्या है, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, एग्जांपल. पर हो गया, आंसर फ्रेम हो जाता है. अरे समझ में आ गया क्या? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर 6 फॉर्मूले और थ्योरी क्वेश्चन. क्लियर है? फिर अभी आगे जाते हैं. द सेकेंड टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग. Now in marginal costing, once again this topic is also very simple. It is also a formula based topic. You have to by heart the formulas, and basic questions on marginal costing are asked. There is a question where 2 years sales and 2 years profit is given, if you remember. एक क्वेश्चन है जिसमें 2 साल का सेल 2 साल का प्रॉफिट दिया रहता है. वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साल, बिकॉज लास्ट ईयर वो क्वेश्चन आया नहीं था, उसके पहले भी नहीं आया था, तो इस साल वो क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है. फॉर्मूलेस बाहर करने के लिए सबसे पहला मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बाहर करना पड़ेगा. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट वी गेट नेट प्रॉफिट. ओके. सेकंड पीवी रेशियो बाहर करना पड़ेगा. पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100. और एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, कोई बोलेगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. इज इट क्लियर? थर्ड फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, इफ ब्रेक इवन पॉइंट is asked in rupees, the formula is fixed cost upon PV ratio. But if it is asked in units, it is break even point in units. The formula is fixed cost upon contribution per unit. Upon contribution. Next formula is margin of safety. Formula is actual sales minus break even sales. Margin of safety, there is one more formula. Anybody? Yes. Formula is what? MOS is equal to profit upon PV ratio. Upon PV ratio. एक स्पेशल टाइप का सम आता है जो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, where profit and PV ratio दोनों दिया रहता है और हमें बोला रहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो. समझ में आ रहा है क्या? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम फाइंड करेंगे, सेल्स दिया रहेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, पीवी रेशियो दिया रहेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, और फिर जो फाइंड करना आराम से मिल जाएगा.
मतलब वो टाइप का सम जो है, वो टाइप का सम भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो 1 2 3 4 एंड वन मोर स्टेप, रिक्वायर्ड सेल्स या सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, very important formula is required sales is equal to fixed cost plus desired profit upon PV ratio. Is it clear? तो कभी कभी desired profit दिया रहता है, sales फाइंड करने बोला रहता है, कभी sales दिया रहता है, profit फाइंड करने बोला रहता है, बस that's it, marginal costing इतना ही है और इसमें ही घूमता है। पास्ट पेपर के सम्स का वीडियो मेरा है, मैंने सेंड किया है, वो एक बार देख लो, बस हो जाएगा। 4 सम 5 सम करो मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, प्रिपेयर हो जाएगा। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूलाज आपने इधर क्यों लिख दिया? लिख दिया क्योंकि देयर कैन बी अ थ्योरी क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दीज टर्म्स। अब थ्योरी क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकता है? इंपॉर्टेंट कौन सा टर्म है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, जिसपे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कैसे निकालते हैं, और एक एग्जांपल, 3 स्टेप में आंसर लिखने का। मैक्सिमम वो लोग ने बोला नहीं पेपर हार्ड है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं डालेंगे, तो वो लोग बोलेंगे ब्रेक इवन चार्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन चार्ट। व्हाट इज अ ब्रेक इवन चार्ट? It is nothing but a diagram. It's a graphical representation of sales, that is revenue and cost curves. Now, what is revenue curve? Revenue curve is a sales curve. ये sales curve. सेल्स का हमेशा जाएगा नीचे, 0 से ऊपर जाएगा। सेल्स ऐसे आएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। There is something called as a fixed cost curve. Fixed cost will always remain fixed. Fixed cost curve. वो फिक्स रहेगा, स्ट्रेट जाएगा। समझ में आ रहा है? There is one more curve that is called as a total cost curve. Total cost मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से निकलेगा। यहां सपोज 1000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, अब यहां से एक कर्व निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट कर्व। अब जिस पॉइंट पे कॉस्ट कर्व एंड सेल्स कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। एनीथिंग अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट इज प्रॉफिट, एनीथिंग अबाउट बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट इज लॉस। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक और अगर कर्व की बात करें तो एक वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी हो सकता है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होगा वो टोटल कॉस्ट कर्व से पैरेलल जाएगा, नीचे से जाएगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कर्व अगर तुमने नहीं बनाया, डायरेक्टली सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बताया, बिकॉज मेन क्या है, यू हैव टू शो ब्रेक इवन पॉइंट, बस ब्रेक इवन पॉइंट तुमको बताना है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पार्ट पे प्रॉफिट, इस पार्ट पे लॉस। क्लियर है क्या? तो इसको तुम लोग को एक्सप्लेन करना है कि ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाने का, सेल्स कर्व क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व क्या है। टोटल कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अरे समझ में आ गया क्या? तो ब्रेक इवन चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांटेज आ सकता है, मैंने बोला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का, दोनों का सेम ही लिखो, फेंको बस, कुछ भी फेंको मार्जिनल कॉस्टिंग का एडवांटेज में। और ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए। एक बार तो पीवी रेशियो भी आया था शॉर्ट नोट के लिए, पीवी रेशियो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। अरे क्या फालतू आंसर है, कितना इजी है। पहले चाहिए तो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना लो और बताओ कि पीवी रेशियो इज नथिंग बट इट इज कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सेल्स अब हमेशा 100% रहता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 40% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 60% है। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। It is nothing but contribution upon sale into 100. When both the years profit is given, when both the year sales is given, then PV ratio is calculated by this formula. Change in profit upon change in sales into 100. अरे समझ में आ रहा है क्या? Change in contribution upon change in sale into 100 भी करेंगे तो भी वही आएगा आंसर, सेम ही आएगा, इतना याद रखना। मतलब लॉजिक सेम है। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड को और वेरिएबल को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग करते हैं।
बट एक टाइप का कॉस्टिंग है जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल को एक साथ पकड़ा जाता है, टोटली पकड़ा जाता है। उस टाइप की कॉस्टिंग को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, उसको पर यूनिट पे एक एक प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर अपोर्शन करते हैं। अभी ये मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होता है ना, लेकिन ये मार्कर बनाने के लिए एक फैक्ट्री में भाड़ा पे किया। अभी भाड़ा एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे डालेंगे? तो अगर भाड़ा एक प्रोडक्ट के ऊपर डालते हैं, अपोर्शन करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिटेल में लिखो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा टेक्स्ट बुक के ऊपर रीड कर देंगे तो तुम्हारे को आइडिया आ जाएगा। क्लियर है? बट क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? ब्रेक इवन चार्ट आ सकता है, ब्रेक इवन चार्ट आ सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है, पीवी रेशियो आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आ सकता है, एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आ सकता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इतना हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इजी और एक टॉपिक कौन सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग। बराबर है? अब प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? रेयरली आस्क्ड। एडवांटेज ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग रेयरली आस्क्ड। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस बहुत बार पूछते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर नहीं पूछेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन क्या बनता है? मैक्सिमम बनेगा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, मैक्सिमम। और एक क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड होते जाता है ना, तो एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स मतलब क्या मालूम, तुमने कभी सुना है क्या जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? एक जॉइंट प्रोडक्ट वो होता है जो रॉ मटेरियल के साथ बनता है। मतलब सपोज वी टॉक अबाउट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अभी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रॉ मटेरियल लेती है, क्रूड ऑयल लेती है, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है। मतलब वो जॉइंट प्रोडक्ट है, पेट्रोल डीजल ये जॉइंट प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते होंगे बट वो जॉइंट प्रोडक्ट्स है। और एक बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट मतलब सपोज वी टॉक अबाउट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुगर केन से बनती है, तो शुगर केन का जो रेसिड्यूल होता है, जो बचा होता है, वो एक बाय प्रोडक्ट रहता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जो बच गया, वो इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली गलती से बच गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो बाय प्रोडक्ट है। उसका वैल्यू कम है। जॉइंट प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है। जॉइंट प्रोडक्ट है ना, तो पेट्रोल का वैल्यू, डीजल का वैल्यू है, लेकिन शुगर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और शुगर से जो निकलता है, शुगर केन से जो निकलता है, मोलासिस निकलते हैं, कुछ भी निकलता है, उसका स्क्रैप निकलता है, उसका वैल्यू कम है। वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट अलग होता है और बाय प्रोडक्ट अलग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल इनपुट होता है उससे ही बनता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो होता है जो रॉ मटेरियल से जो बच जाता है माल, उससे बनता है बाय प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी आ सकता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन बराबर से कर लो। प्रोसेस कॉस्टिंग पर यूनिट टीसीपीयू कैसे निकालते हैं एक बार वो भी देख लो। प्रोसेस अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो टेंशन ही खत्म। तुम लोग तो एग्जांपल वाला अकाउंट भी बना सकते हो कि दिस इज एन एग्जांपल, रेनू लिख देना उधर ही, रॉ मटेरियल लिख देना, एग्जांपल एक्सपेंसेस लिख देना तुम्हारे हिसाब से, नॉर्मल लॉस लिख देना, ऐसे करके एक एग्जांपल क्वेश्चन बना के भी आ जाना। हाँ, फॉर्मेट बना के भी आ जाना, क्या फर्क पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस पूछा तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलता है उसका भी एक फॉर्मेट बना के आ जाता, बैलेंस करके निकलता है, कितना यूनिट गया, कितना नॉर्मली लॉस होने वाला है, इतना आउटपुट हो गया तो इतना आउटपुट नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए था लेकिन कम हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। ऐसा करके एक्सप्लेन करके भी आ सकते हैं। मतलब थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ यू गॉट एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, हाउ यू गॉट एबनॉर्मल गेन यूनिट्स, एंड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आर वैल्यूड एट टीसीपीयू। उसका जो वैल्यूएशन होता है वो किस पे होता है? हमेशा टीसीपीयू पे होता है। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग। एक आता है इसके बाद कॉस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी आया है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। रिटेंशन मनी, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट,
ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है, याद है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 0 से 25 होता है तो 0 लेने का, 25 से 50 होता है 1/3, 50 से 90 होता है 2/3, नियरिंग कंप्लीशन होता है, नजदीक होता है कंप्लीशन के, तो वर्क्स नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देते हैं, जिसको नहीं मालूम था वो लोग लिख के ले लो, और लास्ट में अगर 100% कंप्लीट होता है तो फिर पूरा 100% प्रॉफिट ले लेते हैं। अरे बराबर है, नियरिंग कंप्लीशन। ये है तुम्हारा प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, सो इट इज ओनली अप टू 25%, मतलब 0 से 24 तक ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, यू आर ट्रांसफरिंग एवरीथिंग टू वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज रिजर्व। अगर 25 से 50 तक का होता है तो 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और कैश रिसीव्ड परसेंटेज, या तो परसेंटेज ले लो या तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड ले लो। 50 to 90% होता है तो 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड लिखना पड़ेगा। ये संदीप थ्योरी आएगा ऐसा क्वेश्चन, और बल्कि बच्चे खुश हो जाएंगे, बोलेगा अरे वाह ये तो हम लोग को आता है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वर्क सर्टिफाइड क्या है हम लोग लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड विच इज ऑलरेडी सर्टिफाइड by the surveyor or architect, that is called as work certified. The value of work completed but it is not yet certified, that is called as work uncertified. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। What is retention money? Retention money is what? Work certified minus cash received. सर्टिफाई कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया, 2 लाख का सर्टिफिकेट आ गया, मैं गया कॉन्ट्रैक्टी के पास, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टी को अरे 2 लाख का सर्टिफिकेट आ गया, गिव मी माय मनी। कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा मैं 2 लाख का सिर्फ तुमको 80% दूंगा, 1,60,000, 40,000 रुपया मैं नहीं दूंगा। दैट 40,000 रुपया जो वो रखता है एज व्हाट, एज अ सेफगार्डिंग, सेफगार्ड करने के लिए, खुद को सेफगार्ड करता है वो, खुद को रिस्क से बचाता है वो, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन मनी। जो पैसा वो हमें देता नहीं है, काम सर्टिफाई होने के बावजूद देता नहीं है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज ही इज अवॉइडिंग द रिस्क, वो रिस्क अवॉइड करता है कि साला ये कॉन्ट्रैक्टर 2 लाख का 2 लाख दे दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया तो क्या करेगा हम लोग, तो उसको बोलते रिटेंशन मनी। लास्ट ईयर आया था रिटेंशन मनी, 2019 में दिखा था रिटेंशन मनी। अब ये साल आएगा कि नहीं आएगा नहीं बोल सकते, बट थ्योरी क्वेश्चन है एंड नो नीड ऑफ बाय हार्टिंग। थ्योरी है लेकिन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार रीड कर लो, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क पैराग्राफ दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, रिटेंशन मनी क्या है, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एक बार रीड कर लो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार रीड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये सब एक बार ऊपर से एक बार रीड कर लो तो बस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी क्लियर है। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर थ्योरी क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर कॉस्ट कंट्रोल के इंपॉर्टेंस, और एक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। जीएलए, सीएलसी, नॉमिनल लेजर अकाउंट, इसके ऊपर बहुत बार शॉर्ट नोट आता है। अगर आ गया शॉर्ट नोट, थोड़ा बहुत बाहर कर लो ऊपर से और फॉर्मेट बना दो और जो उसके अंदर आता है लिख दो। समझा क्या? कभी भी याद रखो, कोई भी अकाउंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो हमेशा याद रखो गिव एग्जांपल, कि मान लो कि ऐसा एग्जांपल है और इसका एग्जांपल का ये अकाउंट ऐसा आएगा। प्रोसेस के ऊपर आ गया तो प्रोसेस का एग्जांपल लिख के आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लो, ब्रेक इवन पॉइंट का ब्रेक इवन पॉइंट का एक एग्जांपल ले लो, फिक्स कॉस्ट मान लो इतना है, पीवी रेशियो मान लो इतना है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इतना आ गया, तो इसके ऊपर अगर हम लोगों ने सेल किया तो हमारे को लॉस हो, प्रॉफिट हो जाएगा, इसके नीचे सेल किया तो हमारे को लॉस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो थ्योरी में एग्जांपल लिखने की ट्राई ज्यादा करो। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मेट बनाने की ट्राई ज्यादा करो। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एंड में तुमको कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन दे देता हूँ, और लास्ट में थ्योरी जो चैप्टर है ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो है टारगेट कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हाँ, जिसमें हम लोग कॉस्ट ड्राइवर्स करके एक क्वेश्चन भी आता है, टारगेट कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो
तो एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? सी नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली क्या होता है कि पहले कैसा होता था, पहले हम लोग एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते थे, बनाते थे कि ऐसा बनने वाला है, और उसके बाद हम लोग सोचते थे कि इसमें इतना प्रॉफिट लगाना है, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते थे इसको इतने भाव में बेचना है. दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. पहले ऐसे करते थे. बट क्या होता है मालूम है क्या, आजकल क्या हो गया है, जो हम लोग पहले चीजें करते थे ना वो आजकल अप्लाई करते नहीं. आजकल हम लोग इनोवेटिव चीजें करते हैं, नया कुछ करते हैं. तो आज ये टॉपिक यूज होता है, टारगेट कॉस्टिंग यूज होता है. नाउ व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? टारगेट कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले तो तुम्हारे को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है. सपोज ये मार्कर बनाना है तुमको, ऑलरेडी कैमलिन कंपनी ये मार्कर, बोर्ड मार्कर बना रही है. सपोज मेरी कंपनी को बोर्ड मार्कर बनाना है, तो पहले मेरी कंपनी इसका डिजाइन नहीं डिसाइड करेगी, कैसे बनेगा ये सब डिसाइड नहीं करेगी. पहले मेरी कंपनी डिसाइड करेगी कि ऐसा मार्कर कौन सी कंपनी बना रही है और वो कितने में बना रही है, उनका सेलिंग प्राइस क्या है, उनके सेलिंग प्राइस से मुझे कितना मार्जिन चाहिए पहले मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि टारगेटेड कॉस्ट क्या है, मेरे को ये मार्कर को कितने टारगेट में बनाने का है. उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग. रिवर्स, समझ रहे हैं क्या? पहले डिजाइन होता था, प्रॉफिट होता था, फिर सेलिंग प्राइस होता था. अभी उल्टा होता है. अच्छा ये प्रोडक्ट मार्केट में 25 में बिक रहा है क्या, तो अपने को इसके ऊपर 10 रुपए कमाने का है, तो मैं 15 रुपए में, मेरा 15 का टारगेट है, 15 रुपए में इस मार्कर पेन को मैं बना के दिखाऊंगा. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 15 रुपए के बनाने के लिए मेरे को मटेरियल के कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, मुझे लेबर के कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, मुझे दूसरे ओवरहेड्स को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा. करूंगा लेकिन टारगेट के अंदर बनाने की ट्राई करूंगा. वो कॉस्टिंग को हम लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग. अरे समझ रहा है क्या? फिर टारगेट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, एडवांटेजेस क्या है, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो. एडवांटेज तो है ही, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, जनरेटिंग रेवेन्यू, गेटिंग टारगेटेड इनकम, गेटिंग टारगेटेड प्रॉफिट्स, कुछ भी लिखो. टारगेट कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस आ गया. समझा क्या? फेकम बाकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा, बट लॉजिक समझ में आ गया कि टारगेट कॉस्टिंग का क्या है. क्लियर है? नेक्स्ट कॉस्टिंग इज एबीसी कॉस्टिंग. एबीसी इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या हो गया, फिर से एक बार ये ट्रेडिशनल नहीं है भाई. पहले जमाने में ऐसा कॉस्टिंग नहीं हुआ करता था, आज के जमाने में ऐसा कॉस्टिंग हुआ करता है. अब तुम लोग बोलेंगे सर आज के जमाने में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब क्या? द कॉस्टिंग विच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज. इफ यू हैव मोर एक्टिविटीज, तुम्हारे पास ज्यादा एक्टिविटीज है तो तुम्हारे ज्यादा खर्चे रहेंगे. अगर कम एक्टिविटीज है तो प्रोडक्ट कम खर्चे में बनेगा. समझ रहा है क्या? अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मार्कर पेन है और तुमको इसको मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए बहुत चीजें लगती है, तुम इसको बहुत तरीके से एडवर्टाइज करते हो, अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज करते हो, इसको मार्केटिंग अलग अलग तरीके से करते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज यूज करते हो. सो द नंबर ऑफ एक्टिविटीज यू यूज, द नंबर ऑफ कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल इंक्रीज. तो जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे कॉस्ट बढ़ेंगे. तो उस टाइप की कॉस्टिंग को हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं. और जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटी जो बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के लिए देयर इज अ ड्राइवर. दैट ड्राइवर इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ड्राइवर. मतलब कोई भी खर्चा बढ़ाने के लिए एक ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइवर. मतलब एडवर्टाइजमेंट है तो तुमको कमीशन देना पड़ेगा, तो कमीशन बिकम्स योर कॉस्ट ड्राइवर. मतलब एक्टिविटी is driven by a cost. Your activity is driven by a cost. The more number of activities, the higher will be the cost. The less number of activities, lower will be the cost. Such type of costing is called as an activity based costing, depending on the activities. क्या क्या एक्टिविटी लगती है? पहले के जमाने में प्रोडक्ट जल्दी बन जाता था, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, दूसरे एक्टिविटीज नहीं होते थे. अभी प्रॉब्लम है, अभी बड़ी मशीन है तो मशीन का खर्चा जो है वो मशीन के खर्चे में सब कुछ आ जाएगा. उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उसका सेटिंग अप का चार्ज आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आ जाएगा, तो बहुत सारे एक्टिविटीज आ जाएगी. सब एक्टिविटीज को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉस्ट तुमको मालूम पड़ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं. एक होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मतलब एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, then peak, it is called as maturity, and then decline. ये मार्केटिंग में है, वैसे ही कॉस्टिंग में भी है. कॉस्टिंग में भी एक प्रोडक्ट
उसका डेवलपमेंट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी होने के बाद वो डिक्लाइन पे जाता है और फिर वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कॉस्टिंग क्या बोलता है? कॉस्टिंग ये बोलता है कि तुमको एक प्रोडक्ट को कितने में बेचने का है, उसके पूरे जिंदगी का कॉस्टिंग निकालो और फिर डिसाइड करो कि उसको कितने में बेचने का है। पहले डिसाइड मत करो कि उसको कितने बेचने का है, पहले तो वो ऊपर जाएगा ही, तो उसके हिसाब से उसका अमाउंट मत डिसाइड करो, सब डिसाइड करो। ये भी डिसाइड करो जब वो डिक्लाइन होएगा तो तुमको कितने खर्चे करने पड़ेंगे, तुमको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आईफोन 13 प्रो मैक्स खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है, तो उस पर तुमको डिस्काउंट देने पड़ेंगे। अब 1.5 लाख में नहीं बिकेगा, अब तुमको 1,20,000 में बेचना पड़ेगा, अब 1,10,000 में बेचना पड़ेगा, खर्चे होंगे। तो वो भी डिसाइड करो, सब डिसाइड करो एंड देन डिसाइड कि आज जब वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होएगा मार्केट के अंदर तो उसको कितने भाव में बेचने का, तो तुम्हारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होएगा। मतलब पूरा लाइफ साइकिल एंड तक डिसाइड करो कि उसका अमाउंट कितना होने वाला है, तो तुमको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में कितने में बेचने का है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ वो अच्छा चल रहा है तो अच्छे भेज दो, बाद में कम में भेज दो, वो नहीं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही फ्लॉप हो जाते हैं। प्रोडक्ट हिट कौन से होते हैं? जो इंसान कॉस्टिंग करता है, पूरे लाइफ साइकिल का कॉस्टिंग करता है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर?